الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. کون سی حدیث سے شروع کرنا ہم نے؟ ہاں جی، حدیث نمبر یہ تو ہم نے پڑھ لی تھی نا، حدیث مسائل ہو گئے تھے. اب 128 دوران سفر نمازوں کو جمع کرنے کا بیان. حدیث سے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ احکام لکھواتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاة الظہر والعصر فی السفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیا کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز کو سفر میں. اذا کان علی ظہر سیر، جب آپ سواری پر سوار ہوتے، جب آپ سفر میں ہوتے. وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی جمع کیا کرتے تھے. تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 طرح سے 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 جمع تقدیم. جمع تقدیم کیا ہوتی ہے؟ تقدیم کا مطلب پہلے، یعنی بعد والی نماز کو پہلے پڑھ لینا. تو جمع تقدیم یعنی ظہر کی عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ پڑھ لینا. تقدیم، جمع تقدیم. میں لفظ ہیں 3 لکھ دیتا ہوں. دو نمازوں کو جمع کرنے کی اقسام. کیوں کوئی فارغ نہیں ہے؟ کر دیں، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. تو جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سوری، عصر ظہر کے ساتھ. ظہر عصر کے ساتھ. ہر نماز اپنے وقت پر، لیکن پہلی نماز لیٹ. اس سفر میں آسانی کی پیش نظر، سفر میں آسانی کے پیش نظر شریعت میں یہ 3 صورتیں جائز ہیں. آپ کے سفر میں آپ کے لیے جو سہولت ہے نماز پڑھنے کی اسے اختیار کریں. تقدیم، تاخیر، سوری. تقدیم کیا ہے؟ تقدیم کی صورت بتائیں آپ. ظہر کا وقت شروع ہوا، آپ عصر پڑھ لیں. اور مغرب کا وقت شروع ہوا،
آپ عشاء پڑھ لیں. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میں عشاء کے وقت تک کسی جگہ پر نہیں پہنچ پاؤں گا, لیٹ ہو جاؤں گا, تو عشاء ساتھ پڑھ لیں. اسی طرح آپ جو ہے دوسری قسم ہے جمع تاخیر. اچھا, دوسری صورت یہ کہ زور کا وقت ہونے والا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے, آپ کی جو ٹائم ہو گیا سفر کا, ظہر پڑھیں گے یا سفر کریں گے ایک ہی کام ہوگا, تو آپ گاڑی میں سوار ہو جائیں اور ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت میں جا کر پڑھ لیں. آپ تو لیٹ کر دیا نا آپ نے, مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں جا کر. اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر, یعنی لیٹ کر کے پڑھنا. جمع سوری کو کہتے ہیں, جمع سوری میں بتا دیتا ہوں, دو نمازوں کو جمع کرنا صورت میں, حقیقت میں نہیں, صورت میں. کیسے؟ ظہر کو آپ پڑھیں ظہر کے آخری وقت میں, مثلا ظہر کا آخری وقت آج کے حساب سے 3:50 ہے, تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں 3:40 پر, 10 منٹ میں آپ نماز سے فارغ ہوئے, ادھر سے عصر کی اذان شروع ہو گئی, عصر کی اذان کے ہوتے ہی آپ عصر کی نماز پڑھ لیں, تو آپ نے عصر کو اس کے وقت میں پڑھا, ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا, یہ ہوگی جمع صورتن. اسی طرح مغرب کی نماز کو لے لیں, مغرب کو اس کے آخری وقت میں پڑھ لیں, پڑھ کر فارغ ہوں تو عشاء وقت شروع ہو جائے, اس کو کہتے ہیں جمع سوری. بعد والی نماز کو پہلے, اور تاخیر میں پہلی نماز کو بعد میں, اور سورت میں پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں, دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں. کتاب الصلاۃ بس اب جلدی جلدی کر رہے ہیں انشاءاللہ, جلدی جلدی چند دنوں میں مکمل کرا دیتے ہیں آپ کی کتاب الصلاۃ. تو نبی علیہ السلام سے تینوں ثابت ہیں, ٹھیک ہے, تینوں ثابت ہیں. فقہ حنفی کے اندر صرف جمع سوری ثابت ہے, وہ کہتے ہیں جمع سوری پر عمل کر سکتے ہیں, بقیہ نہیں, جبکہ تینوں آپ سے ثابت ہے. بورڈ پہ لکھا ہوا ایک بار پڑھ دوں, دو نمازوں کو جمع کرنے کی اقسام کس میں؟ جمع تقدیم. جمع تقدیم میں ہوتا کیا ہے؟ عصر ظہر کے ساتھ, عصر بعد والی نماز ہے نا, اس کو ظہر پہلی نماز کے ساتھ پڑھ لینا. اسی طرح مغرب کی نماز, یہ میں نے ایک مثال دی ہے, ورنہ مغرب کی نماز کو آپ عشاء کی نماز کو مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے, دوسری صورت ہے. جمع تاخیر کیا ہے؟ جمع تاخیر میں پہلی نماز کو, چاہے وہ مغرب ہے چاہے وہ ظہر ہے, اس کو بعد والی نماز کے ساتھ پڑھ لینا. جمع سوری یہ ہے, سورتن جمع, ایک نماز کو لیٹ کرنا, دوسرے کو اس کے اول وقت میں پڑھ لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اثر کے ساتھ ظہر اور اثر کو جمع کر لیا کرتے تھے, مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا کرتے تھے. مسائل لکھیں اس کے. حالت سفر میں ظہر اور عصر مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھنا جائز ہے. چاہے وہ جمع تقدیم ہو, تاخیر ہو یا سوری. چاہے وہ جمع تقدیم ہو, تاخیر ہو یا سوری. فجر کے ساتھ کون سی نماز جمع کریں گے؟ فجر کے ساتھ, فجر اکیلی ہے. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مغرب اور عصر جمع کر لیں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے. ظہر اور عصر جمع ہوگی, مغرب اور عشاء ہوگی, بس. اس کے علاوہ جمع کرنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے.
पांचों नमाजें अगर एक साथ जमा करके पढ़ें तो ये भी साबित नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, बीमारी की सूरत में भी कर सकते हैं ये जमा। अब मसला आएगा कसर का। सफर के अंदर एक तो जमा की सूरत है, कसर की आगे हदीस आ रही है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, साहिबतु रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी था सफर में। फकान ला यजीदु फिस सफर, आप नहीं इजाफा किया करते थे सफर में, अला रकअतैन, 2 रकात से। व अबू बकर व उमर व उस्मान कदालिक, अबू बकर, उमर और उस्मान भी इसी तरह करते थे। यानी 4 रकात वाली नमाज को सफर में 2 रकात करके पढ़ते थे, और मगरिब को 1 या 1.5, मगरिब 3 ही है और फजर 2 ही है। मसला लिखें, दौरान सफर नमाज कसर करके पढ़ना जायज है। बताता हूं मैं, सफर अगर लंबा हो, असर और मगरिब का वक्त हो, तब क्या करें? आप असर अकेली पढ़ लें, फिर मगरिब को इशा के साथ पढ़ लें। अगर आपने असर को मगरिब के साथ पढ़ा तो असर की कज़ा हो गई। दो गाना का मतलब होता है दो रकात करके पढ़ना। दूसरा मसला, नमाज कसर हर तरह के सफर में साबित जायज है। नमाज कसर हर तरह के सफर में जायज है, वो सफर हज का हो या तिजारत का, और चाहे सैर तफरी का। कौन सी हदीस का मसला है? मसला तो किसी हदीस का नहीं है, मसाइल है ये, ठीक है। 129 के। नमाज कसर, तीसरा मसला, नमाज कसर अल्लाह की तरफ से नमाज कसर अल्लाह की तरफ से रुखसत और आसानी है। नमाज कसर अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए रुखसत और आसानी है। आप पूरी नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह ये पसंद नहीं करता। अल्लाह जब ये चाह रहा है कि मेरे बंदे कसर करके पढ़ें, तो अल्लाह की रुखसत को पसंद करना ही अफजल है। अफजल नहीं कहेंगे उसे। अफजल नहीं होगा ना, कर लें। रुखसत तो है आपको कि आप पूरी भी पढ़ लें, रुखसत है कसर भी कर ले, लेकिन पूरी नमाज अफजल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल से बढ़कर नेक कौन हो सकता है? आपने सफर में पूरी नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं पढ़ी। दौरान सफर आपने रोजा तोड़ दिया, सहाबा इकराम में से बाज ने नहीं तोड़ा, आपने क्या कहा? यह नाफरमान है, मुझसे बढ़कर नेक कौन हो सकता है? अच्छा, अब मैं आपको कुछ इजाफी बातें बताता हूं। सफर का इतलाक कब से होगा, यानी आप कब से मुसाफिर कहलाएंगे? अपने शहर की हुदूद में कोई मुसाफिर नहीं कहलाता, शहर के हुदूद में कोई मुसाफिर नहीं कहलाता। हाँ, सफर
کا इतलाक होगा जब अपने शहर से निकलकर तकरीबन 20 किलोमीटर सफर तय कर लें। 20 किलोमीटर 18-19 बनता है, तकरीबन 20 किलोमीटर शहर की हुदूद को क्रॉस करके 20 किलोमीटर सफर तय कर लें। अब आप मुसाफिर तो पहले ही थे, अहकाम सफर आप पर लागू होंगे। अब क्या, अगर इतना सफर करना है तो रोजा ना रखें, इतना सफर करना है आपने तो नमाज कसर कर लें, 2 रकात करके पढ़ें। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, कसर, हाँ कसर करें, सारी जिंदगी इस तरह हो तब भी। हाँ, रोजा भी जाहिर अगर ऐसा मामला है तो फिर रोजे के ताल्लुक से अगर जिंदगी भर का मामला ये है तो रोजे तो उसकी तो फिर कजा देनी होती है और वो नहीं दे पाएंगे तो ऐसे में वो रोजा रखें। वो इसकी तो कजा नहीं है ना, ये तो आप रोजा ना कर रहे हैं, उसकी तो कजा देनी है। वो आपके जिंदगी में मौसम ही नहीं आएगा तो आपने फिर रात रात रोजे रखना है। ठीक है, अच्छा अब एक मसला और है, कितने दिन तक वो मुसाफिर कहलाएगा, अहकाम सफर उस पर लागू होंगे? तो मुख्तलिफ अकवाल हैं। एक सही तरीन हदीस है जो सही मुस्लिम के अंदर है, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं 19 दिन के इरादे से जब हम सफर करते थे तो कसर करते थे, इससे ज्यादा इरादा होता तो शुरू से पूरी पढ़ते थे। मसलन आप यहां से जा रहे हैं किसी जगह, किसी शहर, यहां से आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपका प्रोग्राम है 20 दिन का, तो आप पहले दिन से क्या करेंगे? पूरी। आपका इरादा है 15 दिन का, तो क्या करेंगे? पहले दिन से ही कसर। और एक आदमी का प्रोग्राम चेंज होता रहता है, 20 दिन 15 दिन के बाद उसको लगा कि नहीं मुझे एक हफ्ता रुकना पड़ेगा तो कसर करेगा। अगर उसको लगे एक हफ्ते के बाद नहीं मजीद एक हफ्ता रुकना तो भी कसर करेगा, हत्ता कि 6 महीने तक कंफर्म ना हो से तो भी वो कसर ही करेगा। वो एक तो मैंने 3 बातें होगी। सफर के हकाम कब से शुरू होंगे? शहर की हुदूद से निकलकर 20 किलोमीटर, कितने दिन तक? 19 दिन तक। 19 दिन से ज्यादा है तो शुरू से पूरी पड़ेगा, 19 दिन से कम है तो फिर वो कसर करेगा। अगर एक शख्स को कंफर्म ही नहीं है उसने कितने दिन तक रहना है, पता ही नहीं है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, तो क्या करेगा? वो जितने दिन भी रहेगा कसर ही करेगा वो। लेकिन अगर शुरू से उसको यह पता हो कि 1 महीने या उससे ज्यादा रहना है तो फिर वो पूरी ही पड़ेगा। आपका जो जाती घर है ना, जाती घर जिसके आप मालिक हैं, जब वहां जाएंगे तो आप कसर नहीं करेंगे। किसी रिश्तेदार के यहां, ससुराल के यहां, खालू के यहां, ननियाल के यहां, ददियाल के यहां, यह आपका जाती घर नहीं है। हाँ, जहां भी आपका अपना घर है तो आप मुकीम है फिर जी। आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, मैंने 19 दिन तक कह दिया, 19 दिन तक कसर कर सकते हैं आप। ठीक है, 19। मेके में कसर होगी? नहीं, मेके में कसर नहीं होगी। माँ बाप की विरासत में आपका हक होता है, माँ बाप के घर में आपका हक होता है जी। नहीं, हाँ तो अपने माँ बाप के घर में आए ना, तो माँ बाप का घर भी उसका अपना घर है क्योंकि उसका वारिस है वो। 19 दिन वाली बात समझ में नहीं आई? 19 दिन समझ में आया? 19 दिन किसको कहते हैं? अगर आपने किसी जगह जाना है और आपने 19 दिन रहना है तो आपने शुरू से ही कसर करनी है। अगर आपने 20 दिन रहना है, 19 दिन से जायद, तो आप शुरू से पूरी नमाज पढ़ेंगे। बाकी अकवाल इसमें और भी हैं इमाम के। 3 दिन का कौल भी है, 3 दिन।
کہ 3 दिन से जायद रहेंगे तो पूरी पढ़ेंगे, 3 दिन तक रहेंगे तो कसर करेंगे, इसकी कोई नस सरी मौजूद नहीं है। इस्तिदलाल है लेकिन वो नस मौजूद नहीं है कोई सरी। तो भी मुसाफिर हैं आप। जैसे आप 10 दिन हैदराबाद रह रहे हैं, 10 दिन आपने सक्खर रहना है, 10 दिन आपने पंजाब जाना है, तो आप मुसाफिर ही हैं। एक जगह आपका क्याम, एक जगह आपका क्याम 19 दिन या उससे कम है तो कसर, 19 दिन से जायद है तो पूरी। अब है जुमे का बयान। अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये 19 दिन वाला कौल ही राजे है। खुद बयान कर रहे हैं ना, खुद बयान कर रहे हैं कि हम ये करते थे, हम सहाबा ये करते थे कि 19 दिन का इरादा होता तो कसर, इससे ज्यादा का इरादा तो पूरी पढ़ते थे। इससे ज्यादा सरी और क्या बात होगी। साहल बिन साद कहते हैं अन्ना रिजालन, कुछ लोग तमारऊ इख्तलाफ करने लगे फी मिंबरी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के बारे में। मिन अय्ये ओ दिन हुआ, कि वो किस लकड़ी का था। नहीं नहीं, शहर की हुदूद से निकलकर 20 किलोमीटर, घर से नहीं। घर से तो कराची टूल प्लाजा से पहले 40 किलोमीटर हो जाता है, 50 किलोमीटर। अपने शहर से निकलकर, तो हमारे शहर की हदबंदी हुई ना टूल प्लाजा, इससे बाहर निकलेंगे तो इख्तलाफ यह हुआ कि वो मिंबर की लकड़ी कौन सी थी। तो सहल कहते हैं मिन तरफा इल गाबा, झाओ नामी दरख्त, जंगल के झाओ वाले दरख्त की लकड़ी से बनाया गया था। कांटेदार दरख्त होता है ना, गाबा जंगल को कहते हैं। वक़द रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम अलई, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा आप उस दरख्त, उस मिंबर पर खड़े हुए थे। फकब्बरा, आपने अल्लाह अकबर कहा। वकब्बर अन्नासु वराअहु, लोगों ने आपके पीछे अल्लाह अकबर कहा। वहुवा अलल मिंबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। सुम्मा रका, आपने रुकू किया मिंबर के ऊपर ही। फनज़ला, आप नीचे उतरे। अलकहकरा, उल्टे कदम नीचे उतरे आप, रिवर्स गियर लगाते हैं ना। हत्ता सजदा, हत्ता कि आपने सजदा किया। फी अस्लिल मिंबर, मिंबर के किनारे में, मिंबर की जड़ में। सुम्मा आदा, फिर आप वापस ऊपर आ गए। हत्ता फरगा मिन आखिरी सलाती ही, हत्ता कि आप अपनी नमाज के बिल्कुल आखिर से फारिग हो गए आप। सुम्मा अकबल अलन नास, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया युन्नास, ए लोगो, इन्नमा सनअतु हादा, मैंने ये काम इसलिए किया है लितअतम्मू बी, ताकि तुम मेरी इक्तिदा, मेरी पैरवी करो। वलितअलमू सलाती, ताकि तुम मेरी नमाज जान सको। देखेंगे तो जानेंगे ना, इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे हो गए ना, ताकि सब देख सकें आपको। एक रिवायत में फसल्ला, आपने नमाज पढ़ाई। वह हुआ अलैहा, आप मिंबर पर थे। सुम्मा कब्बरा अलैहा, आपने उसी के ऊपर अल्लाहु अकबर कहा। सुम्मा रका, फिर आपने रुकू किया। वह हुआ अलैहा, आप मिंबर के ऊपर थे। सुम्मा नज़ल अल कहकरा, फिर आप नीचे उतरे। ये जो हदीस है इसमें नबी इस्लाम के मिंबर के बनाने का जिक्र है। मिंबर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जुमे के खुतबे के लिए। मैं कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूं? सही बुखारी पढ़ा रहा हूं मैं, उम्दतुल अहकाम की है, हदीस नंबर 130 है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह साल हो गया पढ़ाते हुए।
अच्छा, अब मजे की बात यह है, पहले नबी इस्लाम खजूर का एक दरख्त था, उसका जो तना होता है ना, आप उसको गाड़ा हुआ था, आप उसका सहारा लेकर खुतबा देते थे। किसी ने आपको मशवरा दिया कि आप मिंबर बना लें, आपने फरमाया ठीक है। फिर आपको यह बताया गया कि आपकी एक सहाबिया है जिसका एक कारपेंटर है जो ये काम करता है लकड़ियों का, तो आपने कहा कि उसको मेरा पैगाम पहुंचा दो, को मेरे लिए मिंबर तैयार कर दे। उस सहाबिया को पता चला तो उसने कहा मेरे लिए शरफ की बात है, तो उसने अपने कारपेंटर को कहा, उसने मिंबर बना दिया। मिंबर लाकर मस्जिद में रखा गया, तो नबी इस्लाम ने खड़े होकर खुतबा शुरू किया, तो रोने की आवाजें आना शुरू हो गई। साहबा हैरान हो गए कि रोने की आवाज आ रही है एक सूखी हुई लकड़ी से, खजूर के तने से, और रोने की आवाज इस तरह आ रही है जिस तरह एक बच्चा मां से बिछड़ते हुए रोता है। तो नबी इस्लाम मिंबर से नीचे उतरे, आपने उस खजूर के तने को सीने से लगाया और उसे थपकी दी, और वो इस तरह खामोश हो गया जिस तरह बच्चे को चुप कराया जाए और वो खामोश होता है। यानी नबी इस्लाम से मोहब्बत का आलम यह था कि आपकी दूरी को वो बर्दाश्त ना कर सका। कौन? एक वो दरख्त जिसको काट दिया गया था। आपकी जात से इन हजर और शजर को भी मोहब्बत है। हत्ता क्या आता है ना हदीस में, नबी इस्लाम फरमाते हैं मैं एक ऐसे पत्थर को जानता हूं मक्का में, जब भी मैं उसके पास से गुजरता था वो मुझे सलाम किया करता था। नबी इस्लाम एक यहूदिया औरत की दावत पर गए, उसने जहर मिला दिया था। जब आप लुकमा मुंह के करीब आपने किया तो लुकमे से आवाज आई, मुझे मत खाइए, मेरे अंदर जहर है। ये कदर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आपके मकाम को जानते हैं। और हम लोग यानी नबी इस्लाम का तारुफ भी जानते हैं, आपका मकाम भी जानते हैं, लेकिन वो शौक के मोहब्बत जो है ना, वो उतना नहीं है जितना इस दरख्त को और एक पत्थर को है। और मोहब्बत का सबूत जो होता है अमल से होता है, इत्तिबा से होता है, सुन्नत की पैरवी से होता है, आपके अहकामात की पैरवी से है। और हम नाम नेहाद तो मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, लेकिन काम के नहीं हैं। ये भी पेशन गोई अल्लाह के रसूल की। आपने फरमाया था कुर्बे क़यामत मुसलमानों की हालत ऐसी होगी जिस तरह एक शख्स के 100 ऊंट हैं, मेहनत करता है, पालता है, बड़ा करता है उनको, जब सवारी की जरूरत पड़ी तो उनमें से एक भी सवारी के काबिल नहीं। फरमाया कुर्बे क़यामत मुसलमानों के हालात भी ऐसे होंगे, इस्लाम को उनकी जरूरत होगी लेकिन इस्लाम की तर्जमानी उसका दिफा करने के काबिल एक भी नहीं होगा। सही है, मुसलमान कितने ज्यादा हैं, बड़ी तादाद है, लेकिन चंद यहूदी इन मुसलमानों पर गालिब आ चुके हैं। उसकी वजह क्या है? हमने अपने इस्लाम से वफा नहीं की, हमने अपने नबी से वफा नहीं की। मसाइल लिख लें। तालीम की घर से देखा जा सकता है इमाम को, तालीम की घर से। पहला मसला है सहाबा और ताबीईन मसाइल में इख्तिलाफ की सूरत में अहले इल्म की तरफ रुजू करते थे। हम आपस में निपटा देते हैं। हाँ, मसला हुआ, आपको मसला दरपेश हुआ, किसी ने कहा मैं बता देता हूं, या आपने गूगल किया, या आजकल तो बहुत आसान है, या आपने यूट्यूब पर देखा, वहां कौन मिला, उसने क्या बताया, कुफर तो भरा हुआ है वहां पर। कादियानियत, ईसाइयत, इनकार हदीस, खवारिज, सूफी, मन घड़त नजरिए रखने वाले सारे वहां छाए हुए हैं। अहले हक पीछे हैं,
सोशल में अलग पीछे, बातिल का रुझान ज्यादा है, और जब वहां से ढूंढेंगे आप तो फिर आपको ज्यादा जलालत और गुमराही मिलेगी, हक बहुत कम मिलेगा। और आपने समझा कि हाँ बड़ा अच्छा बयान कर दिया उसने, लपेट कर फलसफा और मंतिक, आप गुमराह हो गए और अमल करना शुरू कर दिया आपने। मनहजी उलमा से राब्ता जरूरी है, जिसका फुकदान है। फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। आज सोशल पर बनावटी बातें करने वाले बहुत हैं, लपेट लपेट कर बातें करेंगे, जुमलों से आपको अपना गर्विदा कर देंगे, लेकिन इल्म में बिल्कुल कोरे होते हैं, अदिल्ला नहीं होते उनके पास। इसलिए जरूरी है सही और मनहजी उलमा का तारुफ। कहते इसके कितने फॉलोवर हैं, ये तो बड़ी इल्मी शख्सियत लगती है। नहीं भाई, कहां से इल्मी शख्सियत होगी? परले दर्जे के मुशरिक होते हैं, उसके चाहने वाले बहुत होते हैं। आपका फरमान है, कुर्ब क़यामत की निशानी है कि लोग जो है जुहाल को अपना सरबरा बना लेंगे, इमाम बना लेंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो सहाबा हमेशा इल्म होने के बावजूद भी अपने से बड़े आलिम की तरफ भेजते थे, इनसे जाकर पूछो। दूसरा मसला, कज़ा में सारी नमाज पढ़नी है जी। तालीम की गर्ज से इमाम मुक्तदियों से, तालीम की गर्ज से इमाम मुक्तदियों से बुलंद जगह पर खड़ा हो सकता है। अगला मसला, नमाज में मामूली सी हरकत नुकसानदेह नहीं है। मुकम्मल कर लें, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। नबी इस्लाम क्या कर रहे हैं? नीचे उतर रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं। ये आगे और पीछे होना ये नमाज के लिए था, इसलिए नुकसानदेह नहीं था। हर उम्मती के लिए नबी की इत्तिबा वाजिब है। हर उम्मती के लिए नबी की इत्तिबा वाजिब है। आप मसाइल कहां से लिखवाते हैं? क्या सवाल है आपका? नहीं, हर नमाज के बाद सजदा साफ करना बिल्कुल गैर शरई अमल है, बिल्कुल गलत है। आखिरी मसला मैंने ये लिखवाया है, हर उम्मती पर नबी की इत्तिबा वाजिब है। कर देंगे, वो मसाइल भी कर देंगे इंशाल्लाह। ये लिख लें पहले। अगली हदीस, एक मसला और लिख लें। वो मसला ये है, खुतबा जुमा मिंबर पर खड़ा होकर देना सुन्नत है। खुतबे जुमे के लिए मिंबर पर खड़ा होना सुन्नत है। वो पीछे क्यों जाते थे? इसलिए जाते थे कि मिंबर पर सजदा नहीं हो सकता था। मिंबर ऊंच नीचे होती है ना, वो सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी पर तो सजदा नहीं हो सकता ना, इसलिए नीचे उतरते थे आप। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन जा मिनकुमुल जुमुआ फलयक्तसिल, तुम में से जो शख्स भी जुमे के लिए आए उसे चाहिए कि गुस्ल करे। जो भी जुमे के लिए आए उसे चाहिए कि गुस्ल करे। तो मसला क्या है? मसला यह है, जुमे के दिन गुस्ल करना अफजल अमल है।
जुमे के दिन गुस्ल करना अफजल अमल है। आखिरी मसला था, हर उम्मती पर नबी की इत्तिबा वाजिब है। हाँ, बल्कि हाँ, आखिरी मसला था, खुतबा जुमा के लिए मिंबर पर खड़ा होना सुन्नत है। अच्छा, इस हदीस का पहला मसला क्या लिखा? जुमे के दिन गुस्ल करना अफजल है। दूसरा मसला, जुमे के दिन गुस्ल नमाज जुमा के लिए है, ना कि जुमे के लिए। कजा, भाई कजा उम्री की कोई हैसियत नहीं है। सच्ची तौबा करके नमाज पढ़ते रहें, अदा करते रहें, कजा उम्री की कोई हैसियत नहीं है। क्या लिखा? जुमे के दिन गुस्ल नमाज जुमे के लिए है, ना कि जुमे के दिन के लिए। इसका मतलब यह है कि जुमे से पहले नहाकर आपने आना है। कुछ लोग कहते हैं कि जुमे की नमाज के बाद नहा लेंगे, जुमा है ना, तो ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। जुमे के दिन गुस्ले जनाबत करना वाजिब है, वाजिब नहीं, जुमे के दिन गुस्ले जनाबत करना चाहिए। जी जी, जुमे के दिन गुस्ले जनाबत जैसा गुस्ल करना चाहिए। अगला मसला, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जा रजुलन इलन नबी सल्लम, एक आदमी आया और नबी इस्लाम यख्तुबुन नास, खुतबा दे रहे थे, यौमल जुमा, जुमे का दिन था। फ़क़ाल सल्लैता या फुला, आपने पूछा ए फुला नमाज पढ़ी है? क़ाल ला, कहा नहीं। तो आपने फरमाया कुम, खड़े हो जाओ, फ़रका रकातैन, 2 रकात नमाज पढ़ो। एक रिवायत में फसल्ली रकातैन, 2 रकात नमाज पढ़ो तुम। तो भाई ये 2 रकात खुतबा शुरू हो चुका हो या ना हो, आपने आकर मस्जिद में पहले जो 2 रकात पढ़नी है उसे क्या कहते हैं? तहियतुल मस्जिद। ये मस्जिद का हक है। मसला लिखें, तहियतुल मस्जिद मस्जिद में बैठने से पहले लाजमी है। तहियतुल मस्जिद मस्जिद में बैठने से पहले लाजमी है। नंबर 2, तहियतुल मस्जिद बैठ जाने के बावजूद भी माफ नहीं। उसे खड़े होकर 2 रकात पढ़ना होगी। ये बात जहन में रखें, तहियतुल मस्जिद का मतलब ये होता है, अगर आप मस्जिद में बैठना चाहते हैं तो फिर 2 रकात पढ़कर बैठें। लेकिन अगर मस्जिद में आप आकर फर्ज में शामिल हो गए, सुन्नत पढ़ना शुरू कर दी, तो तहियतुल मस्जिद खत्म हो गई। क्योंकि मकसद तो हासिल हो गया ना कि आपने कुछ ना कुछ पढ़कर बैठना है, चाहे वो सुन्नत पढ़ें चाहे फर्ज पढ़ें। ठीक है, और अगर फर्ज और सुन्नत का टाइम नहीं है तो आप तहियतुल मस्जिद पढ़ लें। यह माना हरगिज नहीं है कि अगर आपने सुन्नत शुरू कर दी तो आपको तहियतुल मस्जिद पढ़नी ही पढ़नी है, नहीं। खतीब दौरान खुतबा मुखातब से गुफ्तगू कर सकता है। खतीब दौरान खुतबा मुखातब से गुफ्तगू कर सकता है। और
मुक्तदी भी खतीब से बात कर सकता है, ये एक साथ ही है, मुक्तदी से और मुक्तदी खतीब से बात कर सकता है, दोनों साबित है। और मुक्तदी खतीब से, यानी मना क्या चीज है, आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते आप, ये मना है। अब इसमें देखें आप कि बस एक चीज है, कुछ लोग खुतबा शुरू होने के बाद नमाज शुरू कर देते हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, खुतबा शुरू हुआ 2 रकात याद आ जाती है इनको, ये गलत है। अब इनको खामोशी से खुतबा सुनना है, सिर्फ 2 रकात वो पढ़ेगा जो लेट आया है, पहले तो जल्दी आना चाहिए, जो लेट आया है तो वो पढ़ेगा, बाकी जो पहले से मस्जिद में बैठा हुआ है उसने खामोशी से खुतबा सुनना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, ना टेक लगानी है, ना किसी की तरफ देखना है, ना किसी से खेलना है, ना बात करनी है, ना खामोश कराना है, खतीब का खुतबा सुनना है बस, बस। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।